recording. Yeah. So if you think about linear equation, so till now we have linear equation like 2x minus 3 is equal to 4, or 3x minus 4 plus 8 by 7 is equal to 2, like that, right? Anna, right? And confusing word problems, that's it, right? But suppose if I increase the number of terms, okay, if I increase the number of terms, so there may be multiple times. Okay guys, so you can see the screen. Tell me, can you see the screen? Yes or no? You can see the screen now, right? Okay. Yeah, everyone can see the screen. Okay. So when I talk about equations, so see, this is exercise 2.3. We have discussed till 2.2. Now tell me this, is there any difference between your 4.4 and 2.3? ये देखो, we have discussed 4.4 and this is 2.3, right? It's almost same, right? Anna, instead of one variable term, we just have two variable terms. So if you think logically, when we talk about 4.3, the problems were like that. 4 plus 2 into x minus 1 plus 3 is equal to 7 or 5, right? So variable term was only once, right? Hannah, it was only once. But when you talk about this problem 2.3, it is multiple times. Now, is there any change in concept? Tell me, is there any change in concept? No, right? We have to follow the same thing. Previously, we used to transpose only constants, है ना? We used to transpose only constants, but now we can transpose both constant and variable. I'll just pick one example. Just take question number 8, right? 8, fine enough. 8, just see everyone, है ना? Question number 8. Now we have 2x by 3 plus 1 is equal to 7x by 15 plus 3. So here we have variable both side, constant both side. So here we need to transpose both variable and constant. So take this to this side and this to this side. Got it? That's the difference. That's the only difference. But ये concept नया थोड़ी ना है. Concept तो same है, right? है ना? Concept तो same है. Yes, Ragini, very good. है ना? So you can do that, right? Now let's do that. Let's solve. So we have 2x by 3 minus, because ये इधर से इधर आ रहा है, 7x by 15 is equal to 3 minus 1. Yes or no? Everyone tell me. सही है कि नहीं? सही है ना? सही है? Very good. Now अब बताओ next step क्या होना चाहिए? बताओ. Which concept? Again, you should know that which concept is used in every concept, sorry, in every step. Yes, Devika, wo to right hand side, left hand side. Yes, Abhinav, very good. LCM, है ना? So left hand side, Devika, very good. LCM. So left hand side में हम लोग LCM लेंगे. So 3 और 15 का LCM कितना होता है? 15, है ना? 15. Now 15 divided by 3, 5 into ऊपर क्या है? 2x. तो total 2x. 2x. The basic step same रहता है. ध्यान दो, चाहे variable हो, चाहे वो constant हो, LCM same होगा. There is no change. Minus. Now 15 will divide 15. How many times? One time. So 1 into क्या ये 7x. 7x is equal to ये 3 minus 1 2 हो गया. ये step सबको समझ में आया?
सबको ये स्टेप समझ में आया? ऋषिका, अमीशा, एवरीवन, राइट? सबको समझ में आ रहा है? वेरी गुड. सो 5 into 2 10x, 10x minus 7x by 15 is equal to 2. ठीक है? So 10 minus 7 3x हो गया, by 15 हो गया, is equal to 2 हो गया. 3 से 15 5 times divide हो गया. x कितना हो गया? क्रॉस मल्टीप्लाई, देन 5 10. सबको 10 आ गया? यस, यस, वेरी गुड. देविका सही है, मधुर सही है, ठीक है ना? तो बताओ इसमें क्या नया है? जस्ट थिंक अबाउट दिस. इसमें नया क्या है? पहले हम लोग सिर्फ कांस्टेंट को ट्रांसपोज करते थे, अभी दोनों को करेंगे. एज सिंपल एज दैट, राइट? यस, आंसर इज 10. ठीक है? ओके, वेरी गुड. I hope everyone got this. Yes. How many of you can try question number 9 or question number 6? Try question number 6. Right? Try question number 6 and tell me the answer. Yes, Ragini. Question number 6. Yes, Devika, solve. ठीक है, सबको जल्दी जल्दी ट्राई करो. देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करता है. ओके, तन्मय, तन्मय ने सबसे पहले रिप्लाई किया. वेरी गुड. सो विल चेक कि तन्मय का आंसर सही है कि नहीं. बट तन्मय इज द फर्स्ट वन जिसने सही किया. After completing this chapter, next class we will play a quiz, right? ठीक है, हम लोग एक क्विज खेलेंगे. वृंदा ने सेकंड रिप्लाई किया, तुविष्का थर्ड, श्राव्या फोर्थ. सो अब तक मुझे 3 डिफरेंट आंसर आए हैं. तो चेक कर लो, अपने अपने आंसर्स चेक कर लो, राइट? 2 आंसर 0 आए हैं, एक आंसर 1 आया है, एक आंसर 6/5 आया है, एक आंसर -6/5 आया है, एक आंसर 8/11 आया है. इतने सारे आंसर्स आए हैं. तो देखो किस स्टेप में किसने गलती की है. ठीक है, राइट? आराम से, स्टेप से, प्यार प्यार से. ठीक है, आराम से एक एक स्टेप. 8/5 भी आ गया, एक और आंसर आ गया. ठीक है, कोई बात नहीं, देखेंगे स्टेप बाय स्टेप. युक्ति क्या आंसर आया? वृंदा, देविका, मान्यता, मनसा, दक्ष. ओके, दक्ष का भी आंसर आ गया. ठीक है, चलो देखते हैं. सबसे ज्यादा आंसर पूर्वी का भी आ गया, देविका का भी. हाँ, देविका ने सेंड कर दिया था. नाउ जस्ट चेक योर स्टेप्स. सो पहला स्टेप, ये 8x plus 4 is equal to. नाउ यहाँ पे आई होप किसी ने क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ नहीं किया होगा. इट्स जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. 3 into x 3x, 3 into x 3x, 3 into -1 -3 plus 7. ये सबने किया. ये सबको समझ में आया? बोलो, सबने यही किया ना? इसके अलावा तो और कुछ नहीं किया, राइट? Everyone did this only. Very good, right? Now 8x plus 4.
is equal to 3x. Now, plus 7 minus 3 will give me plus 4. Yes or no? Now see, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होना चाहिए था? Again, a by b is equal to c by d और a into b is equal to c into d. ऐसा होना चाहिए था. अगर ये प्लस e होगा then क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. Got it? Now see this. 3x इधर जाएगा, 4 इधर आएगा. So 8x minus 3x is equal to 4 minus 4. Step by step, just check the steps. Everyone, just check your steps and see what mistake you are doing. है ना? That you should not repeat that mistake. So 8x minus 3x, 5x. 4 minus 4 बताओ क्या होता है? बताओ क्या होता है? 4 minus 4. सबको पता है? लड्डू, बड़ा वाला लड्डू, राइट? बेसन का लड्डू कि मोतीचूर का लड्डू, जो भी हो लड्डू होता है. और लड्डू भाई एनीथिंग क्या देगा? लड्डू. द आंसर इज 0, है ना? नाउ स्टेप्स थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं. तुम पहले ट्रांसपोज करके फिर इसको खोलो, कैसे भी करो, राइट? सो अगर सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोज और मल्टीप्लाई है, राइट, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही है. ऑब्वियसली थोड़ा आगे पीछे तो होगा ना, राइट? तुम पहले ऐड करो या बाद में, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तो सबको समझ में आ गया कि कहां कहां गलती कर रहे थे. क्रॉस मल्टीप्लाई में गलती, पहली गलती वो नहीं करना है, राइट, है ना? क्रॉस मल्टीप्लाई तभी करेंगे जब ओनली मल्टीप्लिकेशन रहे, है ना? ठीक है, हाँ समझ में आ गया था श्राव्य? तुमने ट्रांसपोज करके ब्रैकेट खोला था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. चलो क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7. सो युक्ति ने क्वेश्चन नंबर 7 लगता है कर दिया है. ठीक है, सबको क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करेगा. देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि देखो क्या है, 1 into x is equal to 4/5 into ये होल ब्रैकेट है x plus 10. समझ में आ रहा है ना ये, राइट? तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई में है, प्लस समथिंग कुछ नहीं है. सो हियर यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई. गॉट इट? तो विश्का गॉट इट? एवरीवन जिसके 8/5 या 8/11 आंसर आए थे या 6/5 आए थे, है ना? सबको समझ में आया कि क्रॉस मल्टीप्लाई कब करना है और कब नहीं करना है. ठीक है, ट्राई करो सब कोई, आंसर बताओ मुझे. ठीक है, सो अभी भी अलग अलग आंसर आ रहे हैं. दक्ष सही है तुम्हारा आंसर. तो विश्का थोड़ा सा कैलकुलेशन चेक करो. ठीक है, दक्ष का आंसर सही है. अभिनव तुम भी थोड़ा सा आंसर चेक करो. 7th मैंने बोला, ठीक है, 7th. पहले क्या करना है? पहले क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना? यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बिकॉज ये मल्टीप्लाइड है पूरा. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 5x इज इक्वल टू 4 into x plus 10. ये सबको समझ में आया? ठीक है, सबको ये स्टेप समझ में आया? यस और नो, टेल मी. क्वेश्चन 7 में बोल रहा हूँ. 7 आंसर्स अलग अलग आ रहे हैं,
अलग अलग कैसे आ रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, राइट। ये सबको समझ में आया, ये स्टेप सबको समझ में आया कि नहीं आया? यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट फोर्थ वन नहीं, मैंने सेवेंथ वन बोला, सेवेंथ, ठीक है, सेवेंथ सॉल्व करने के लिए बोला मैंने अभी, ठीक है, ओके। नाउ सी 5x इज इक्वल टू, ना 4 इंटू एक्स कितना होता है, टेल मी, 4 इंटू एक्स कितना होगा, 4x, वेरी गुड तन्मय। 4 इंटू 10 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना, जो हम लोगों ने पढ़ा वही यूज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। 4 इंटू 10 40। अब बताओ क्या करना है, ट्रांसपोज करना है सिर्फ, राइट, ट्रांसपोज करना है। सो दिस विल गो टू दैट साइड, सो 5x minus 4x is equal to 40, yes, 5x minus 4x is equal to 40, so 5x minus 4x कितना होता है, 5 एप्पल minus 4 एप्पल, श्राव्या क्या कर रही हो, 5 apple minus 4 apple, how many apples, 1 apple, x is equal to ये कितना है, 40, आंसर कितना हो जाएगा, 40। गॉट इट, ठीक है, सबने देखा कि कहां पे क्या गलती था, बताओ क्या गलती कर रहे थे, या पूर्वी, व्हाट मिस्टेक यू वर डूइंग, यू शुड रिकॉग्नाइज योर मिस्टेक्स, ठीक है, then only you can learn, right, so you should know what mistake you are doing, okay, step 3, okay, ठीक है, चलो, now next problem कौन सा करें, 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 10, everyone solve question number 10, क्वेश्चन नंबर 10, लीनियर इक्वेशन कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रॉन्ग करना है, सबका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है, see, and these chapter involve overall concept, fractions का भी, लीनियर इक्वेशन का भी, इंटीजर्स का भी, है ना, वी आर यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, राइट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, देन वी आर यूजिंग एलसीएम एचसीएफ, सम ऑफ फ्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, यस और नो, है ना, सो दैट्स द कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन, ओके, चलो, सो 10th एवरीवन सॉल्व, ठीक है मधुर, वेरी गुड, क्या आंसर आया इस तरह, तन्मय, युक्ति, एक्स का वैल्यू चाहिए, एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू क्या आया, okay, some people are messaging me on other, okay, that's why, abhinav, brinda, रागिनी, होस्ट पे मैसेज करो, होस्ट पे, वो होस्ट पे नहीं, ठीक है, सो ध्यान दो, अभी भी बहुत लोगों ने बहुत ही सिली मिस्टेक की है,
नाउ टेल मी, सबसे पहले वोटिंग, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा क्या? कैन वी डू क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्टली? क्रॉस मल्टीप्लाई, कैन वी डू दैट? टेल मी, yes or no? No, right? No, we cannot, right? बट यहाँ पे कुछ लोगों ने शायद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, जो कि गलत है, ठीक है? सो क्या होगा? ट्रांसपोज, yes, yes, we have to transpose. So either we can transpose this to this side, so it will be 3m minus 5m is equal to what? Tell me. Same na, minus 8 by 5, 8 by 5. So 3m minus 5m minus 2m और ये minus 8 by 5. So दोनों साइड में माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना? माइनस माइनस दोनों साइड में कैंसिल हो जाएगा. Yes or no? Yes or no? Because just multiply negative sign on both side. Then tell me, m is equal to 8 by 5 into 2 cross multiplication. 2 से क्या है? 4 times. So this will be m is equal to 4 by 5. So most of you have correct answer. ठीक है? अभिनव देखो कौन सा स्टेप नहीं समझ में आया? Yes, you can also transpose 3m. तो उस केस में दोनों को ट्रांसपोज करना पड़ेगा, ठीक है? It will be same only, right? Step 2, ठीक है? देखो, forget about cancelling. मान लो कैंसलिंग नहीं सोचते हो, ये स्टेप सबको समझ में आया? Yes. So this is minus 2m minus 8.5, 8 by 5, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई, m is equal to minus 8 by 5, right? Now this minus 2 is a multiplication, so here it will come into division, so into minus 2. Now minus minus क्या होता है? Tell me. Minus by minus, minus minus प्लस होता है ना, कैंसिल होता है, राइट? इन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, एंड 2 से ये कैंसिल हो गया 4 टाइम्स, तो 4 by 5 आ गया. गॉट इट अभिनव? टेल मी, गॉट इट? यस, ओके, चलो. सो आई गेस ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, है ना? ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. अब थोड़ा सा और अच्छा अच्छा प्रॉब्लम्स करते हैं, ठीक है? थोड़ा सा अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स करते हैं. चलो, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3, ट्राई क्वेश्चन नंबर 3. टेल मी. देखो थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स आ गया ना, है कि नहीं? थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स आ गया है. यस, कॉन्सेप्ट सेम, ठीक है? जो धनवी भी है, कॉन्सेप्ट सेम. एवरी वेरिएबल वन साइड, एवरी कांस्टेंट अनदर साइड, राइट? सेकंड कॉन्सेप्ट, टेक एलसीएम. You can't see the screen, Esther? You can leave and join again. ठीक है, try to leave and join again. Screen is visible. ठीक है, एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 सबको आई विल सॉल्व. ओके, मान्यता सॉल्व कर दिया, ठीक है? देखते हैं आंसर स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप. So we will start with x plus 7 minus 8x by 3 is equal to 17 by 6 minus 5x by 2. So पहला स्टेप क्या बोला मैंने? ऐसे देखो, it can be solved in many ways, but best क्या है? Yes Ragini, I'll explain. Best क्या है? Take all the variables
to one side and all the constant to other side. Now अब देखो, when you talk about LHS, LHL, right? देखो ये LHS में कौन कौन कांस्टेंट है? x और 8x/3 वेरिएबल है और 7 कांस्टेंट है. तो कुछ लोग ऐसे करते हैं, a7 - 8 है इज इक्वल टू -x. ये पाप है, पाप. ये पाप नहीं करना है, राइट? ये पाप नहीं करना है. गॉट इट, राइट? कांस्टेंट को वेरिएबल से प्लस माइनस नहीं कर सकते, ठीक है? So that is your पाप. Now what to do then? What to do? We have to take all the constant to this side and variable to this side. So 7 इधर जाएगा और -5x/2 इधर आएगा. ये सबको समझ में आया? This understood? ये step? Tell me. रागिनी, युक्ति, Rishika, Amisha? Yes? Okay, let's do the second step. So this will be x minus 8x/3. ये तो इधर ही था. This was -5x/2. So if -5x/2 will come to this side, it will become plus 5x/2 is equal to, ये 17/6 था, right? Plus 7 इधर जाएगा कितना बच जाएगा? -7. Now tell me, ये सबको समझ में आया? Step 2. Anyone have any issue in this step? आराम से step by step, ठीक है? Very good, right? Now देखो next step. Tell me, what should be your next step? बताओ, next step क्या होना चाहिए? You only tell me. What should be our next step? Could we just transpose, है ना? 7 को right hand side shift कर दिया और 5x/2 को left hand side shift कर दिया. That's it. That's it. मैंने बस वही किया है, ठीक है? Right? Okay. So yes, very good. Most of you are right. Yes, LCM. Very good, LCM. So LCM लेते हैं. तो ये है x/1, 8x/3, 5x/2. So we have 1, 3 and 2. 1, 3 and 2 का LCM कितना होगा? Tell me, what is the answer of 1, 3 and 2? 6. Yes, very good. 6. ठीक है? Step by step, आराम से. Now 6 is divided by 1. 6 is divided by 1. कितना होगा? 6. So it will be 6 into x. This is negative sign. So यहाँ पे negative sign, है ना? Step by step. Now 6 is divided by 3. अगर 6 3 से divide होगा, 6 3 से divide होगा, कितना बचेगा? 2. 8 into 2 कितना हो गया? 16x, है ना? 8 into 2 16x. Yes or no? ये सबको समझ में आया? I'm just taking LCM, right? फिर साइन कौन सा है? साइन कौन सा है? What is this sign? Plus, plus. Now 6 is divided by 2. How many times? 3 times. 5 into 3 कितना होता है? 5 into 3 15. So 15x. ठीक है? तो ये हुआ. किसको दिक्कत है इसमें? आराम से थोड़ा सा सोचेंगे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, राइट? मेरा लेफ्ट हैंड साइड समझ में आया? तन्मय, दक्ष, we will cross check the answer, right? After solving we will see. ठीक है? धनवी, युक्ति, रागिनी, समझ में आया? एस्थर, मान्यता, right? Okay, very good. So we will do the same thing to right hand side ना? Same काम करेंगे. It is 17/6 or 7/1. LCM is 6, right? Now here it will be 17 only minus 6, 1, 6. So it will be 7 into 6. 7 into 6. ठीक है? Right? है ना? चलो, किसी दिक्कत है इसमें? यहाँ तक में किसी दिक्कत है?
नहीं, I should really write straight. Okay. Okay. अब देखो ये 6x माइनस 16x प्लस 15x, 6 माइनस 16 कितना होता है? 6 माइनस 16, टेल मी, 6 माइनस 16 इज इक्वल टू माइनस 10 ना, माइनस 10, राइट? सो माइनस 10x, और you can do like this, you can do like this, 6x पॉजिटिव 15x पॉजिटिव, है ना, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो 6 प्लस 15 31x माइनस 16x by 6 is equal to 17 minus 42, 17 minus 42 by 6, ठीक है, right? Now next step, we know that 31 minus 16 is nothing but, sorry, this is not 31, this is 21 na, sorry, my bad, it is 21 not 31, तो 6 है ना, right? 21, 21, so 21 minus 16 है ना, 21 minus 16 कितना हो जाएगा? 15, right? यहाँ पे 15 था तो 21 minus 16 will give you 5x, yes, very good, 5x by 6 is equal to, now 42 minus 17 कितना होता है? 25, but sign is negative, so minus 25 by 6. Now cross multiply, right? So next step, x is equal to minus 25 by 6 into, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगी क्या हो जाएगा? 6 by 5, yes, yes, answer is minus 5, ठीक है, चेक कर लो सबको, ये minus 5, सो जिसका जिसका भी आंसर -5 था वो सही है, जिसका जिसका भी आंसर उसके अलावा कुछ और भी था, चेक दिस स्टेप कि किस स्टेप में गलती किया तुमने, ठीक है, 2 मिनट देखो, सबके नोटबुक में होना चाहिए, है ना, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, गॉट इट एवरीवन, धनवी गॉट इट, रागिनी, एवरीवन, ठीक है, चलो एक और प्रॉब्लम करते हैं, एक और प्रॉब्लम करें, थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, राइट? कोई दिक्कत नहीं, मुश्किल हो तभी तो सीखेंगे, है कि नहीं? बिना मुश्किल काम किए कहां से कोई सीखेगा? फोर्थ, ट्राई करो फोर्थ, नाउ let me ask you this, let me ask you this, can we cross multiply in 4? Tell me, can we cross multiply in 4? Yes or no? Yes, very good, very good, yes, because it is a by b is equal to c by d, है ना, you can cross multiply, solve it, everyone solve it, fourth, yes, yes, question number 4 मार्क किया हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर 4, yes, yes, वो x minus c, it is, it is understood,
x माइनस 5 है ना, और कुछ नहीं है ना, राइट? तो मतलब वो ब्रैकेट, सी ब्रैकेट मैंने सिर्फ इसलिए दिया बिकॉज 3 इज डिवाइडिंग बोथ x and minus 5. ठीक है, ओके. तो विश का क्या आंसर आ गया, मानसा का आंसर आ गया, पूर्वी का भी आंसर आया. आंसर सबके अलग अलग आ रहे हैं. देखो अलग अलग क्यों आ रहे हैं. ठीक है, मैंने अभी बोला, आई जस्ट सेड दैट x minus 5 और x minus 3, ये 3 दोनों डिवाइड किया और ये 5 दोनों डिवाइड किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इट बी 5 into x minus 5 and this is 3 into x minus 3. स्टेप देखो, स्टेप देखो. yes, okay, so most of you are getting 8 as an answer, okay, which seems like right answer. 8 plus 8, ठीक है, plus 8 will be, okay. Now we will check that plus 8 answer है कि नहीं, we will check, ठीक है, because I don't think that 8 will be the answer, right? I don't think 8 will be the answer, but let's see. Okay, no, sorry, 8 will be the answer, right? 8 will be the answer. So yes, Devika, so it will be 5x minus 25, simple distributive property, is equal to 3x minus 9. ये सबको समझ में आया? सी क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, राइट? क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, बिकॉज इट इज a by b is equal to c by d, where a is total x minus 5 and b is total x minus 3. ठीक है, राइट? तो इसका पूर्वी युक्ति ध्यान दो, मैं बार बार वही बोल रहा हूं, यू शुड नो व्हेन टू क्रॉस मल्टीप्लाई, व्हेन टू ट्रांसपोज. ठीक है, यहाँ पे किसको ट्रांसपोज करोगे, थिंक अबाउट इट, यहाँ पे किसको ट्रांसपोज करोगे, 5 को, 3 को, किसको? बिकॉज यहाँ पे 3 डिवाइड कर रहा है x minus 5 को, so you cannot transpose 5 here because it will be minus 5 by 3. ठीक है, वो गलत हो जाएगा. Got it? So transpose, yes, transpose 3x to this side, 25 to this side, we will get 2x is equal to 16, then x is equal to 8, right? Got it everyone? Dhanvi got it? Vishka got it? Urvi understood? Yes, very good. Ragini, Amisha, Daksh, Harshvardhan, Rishika, Madhur, आदित्य, नंदीश, सबको समझ में आना चाहिए, सबको समझ में आना चाहिए. ठीक है, वेरी गुड, राइट? स्टेप बाय स्टेप अपने नोटबुक में लिखते जाओ. ठीक है, एंड प्लीज वॉच दिस वीडियो आफ्टरवर्ड्स इफ यू हैव एनी डाउट. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप. नाउ अब थोड़ा सा और बड़ा प्रॉब्लम. ठीक है, फिफ्थ, right? Now this is your big problem. Now first thing that you should do, 2x is equal to 16 होता है, तो x is equal to 16 by 2 हो जाएगा ना, right? 8. ठीक है, 2 नहीं होगा. Okay, so see the concept that I was saying, is, now forget about everything, just talk about term. First term, what do you think, what is your first term? Tell me. It is 3t minus 2. 3t minus 2 is taken as one term by 4 because 4 is dividing this whole 3t minus 2. Got it? ये सबको समझ में आ रहा है? Yes or no? Tell me. Yes or no? Yes. Now यहाँ से ना चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, राइट? क्यों? क्योंकि you can do multiple things for now.
राइट ना। जब भी ऐसा प्रॉब्लम रहे, जब भी ऐसा प्रॉब्लम रहे, सब कुछ मिक्स्ड है कि नहीं, कांस्टेंट, वेरिएबल, सब कुछ मिक्स्ड है, राइट। व्हाट टू डू, क्वेश्चन वुड बी, बहुत लोग सोचेंगे करेंगे क्या, व्हाट टू डू, राइट। ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज किसको करेंगे, यहाँ भी कांस्टेंट है, यहाँ भी कांस्टेंट है, राइट, किसको करेंगे। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट स्किप फर्स्ट स्टेप, ठीक है, फर्स्ट स्टेप स्किप कर दो, समझ में आ रहा है, फर्स्ट स्टेप स्किप कर दो, डू सेकंड स्टेप, राइट। फर्स्ट स्टेप बाद में करना, ट्रांसपोज बाद में करना। यस, वेरी गुड देविका। सो फर्स्ट एलसीएम ले लो, ठीक है, एलसीएम ले लो, राइट। जो राइट हैंड साइड है राइट हैंड साइड ले लो, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड एलसीएम ले लो। समझ में आ रही है चीज, टेल मी, ये सबको समझ में आ रहा है। और दिस इज स्टेप वन, दिस इज स्टेप वन, वेट वेट, स्टेप वन है ये, सेकंड स्टेप, ठीक है, सेकंड मेथड। ना टेल मी 3t minus 2 by 4 क्या है ये, isn't it 3t by 4 minus 2 by 4, tell me, tell me, सोच, अभी सुनो, सिर्फ सुनो, राइट। 3t minus 2 by 4, 3t by 4 minus 2 by 4 है कि नहीं है, बताओ है कि नहीं है। देखो क्योंकि मैथ्स है ना, मैथ्स में कोई फिक्स्ड मेथड नहीं होता है, तुमको जो क्लिक कर जाए, राइट, वो मेथड है ना। सो कोई ऐसे भी कर सकता है, मैं हूंगा तो मैं शायद ऐसे करूंगा, राइट। किसी मेथड में कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, किसी मेथड में कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, राइट, डिपेंडिंग ऑन द मेथड, दैट्स द ब्यूटी ऑफ मैथ्स, ओके, राइट। नाउ टेल मी दिस, सो ये तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, ठीक है। 2t plus 3 by 3 को क्या लिख सकते हैं, बताओ एवरीवन। t is equal to नहीं, इक्वेट नहीं कर रहे हैं, इट विल बी स्प्लिट कर रहे सिर्फ, है ना, 2t by 3, क्योंकि 3 दोनों को डिवाइड किया है ना। यस तन्मय, वेरी गुड, बृंदा सब सही कर रहा है, तो विश्वास, श्राव्या, प्लस 3 by 3 विच इज 1 लिख सकते हैं, है ना। गॉट इट, ये सबको समझ में आया, सबको समझ में आया, तो आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे, ये सबको समझ में आया। नहीं, देखो एक चीज बताओ, 1/2 माइनस 1/3 को क्या लिखते हैं हम लोग, एलसीएम 6 लिखते हैं ना। यहाँ पे क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं, यहाँ -2 लिखते हैं, लिखते हैं कि लिखते हैं, है ना, चल में लिखते हैं। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टेकिंग द रिवर्स, उल्टा कर रहे हैं। अब इसको वापस ऐसे लिखेंगे, तो क्या करेंगे, 3/6 minus 2/3, sorry 2/6, right? So 3/6 is 1/2 और 2/6 is 1/3, ठीक है। So whatever we write after taking LCM, right, we can do the reverse also, ठीक है। पूर्वी समझ में आया कि मैंने क्या किया, है ना। और a plus b by c क्या होगा, a by c plus b by c, दोनों को डिवाइड करेगा, दिस इज दी रूल, राइट। नोट कर लो अगर नहीं पता है तो, है ना, नोट कर लो अगर नहीं पता है तो, पता है सबको, ठीक है। सो आई गेस ये सबको समझ में आया ना। एक और पाप जो लोग करते हैं, राइट, आई एम सेइंग दिस पाप बिकॉज इट इज पाप, ठीक है, बहुत बड़ा पाप है। वो पाप क्या करते हैं मैं बता रहा हूँ, तुम लोग में से बहुत लोग भी करते होंगे, ठीक है, या करेंगे, राइट। मैं पाप होने से पहले रुक रहा हूँ, 4 - 5/2, 4 - 5/2 is equal to
2 minus 5 is equal to -3। बताओ सही है गलत है? श्राव्या तुमने भी एक पाप किया अभी। -2/4 है, -1/2, राइट? दिस इज राइट और रॉन्ग? टेल मी, राइट और रॉन्ग? रॉन्ग है ना, बिकॉज 2 इज डिवाइडिंग, हाँ वही, यस यस, so 2 is dividing both 4 and 5 है ना, 2 is dividing both 4 and 5, so you cannot cancel this 2 with 4, right? This is wrong, ये पाप है, ये पाप है, ऐसा पाप नहीं करते, और यही पाप स्टूडेंट्स करते हैं बार बार, ठीक है? 4 minus 5/2 it means 4 and 5 both are divided by 2, ठीक है? ऐसा नहीं कि सिर्फ 4 डिवाइड है, right? So you should not do this path. See, I knew, right? कि ये पाप कोई ना कोई किया होगा, ठीक है? तो लिख लो, अपने नोटबुक में लिख लो, ये पाप नहीं करना है, ठीक है? यस, ठीक है। चलो अब सॉल्व करते हैं। अब देख लिया कि कौन सा पाप नहीं करना है सॉल्व करते वक्त, तो सॉल्व करते हैं ना। सेकंड पाप, ठीक है? साइन का ध्यान ना देना, बॉडमास का ध्यान ना देना। अब लिखते हैं 3t minus 2/4 कैन बी रिटन एज 3t/4। स्टेप बाय स्टेप देखो, एक एक टर्म देखो। 3t/4 माइनस 2/4, 2/4, राइट? उसके बाद साइन कौन सा है? कौन सा साइन है ये बताओ, कौन सा साइन है? माइनस। अब ये टोटल टर्म है ना, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट देंगे। क्या देंगे? ब्रैकेट देंगे, समझे? ये ध्यान देना, ब्रैकेट देंगे। फिर 2t + 3/3, क्यों? देखो इसको लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं बता रहा हूँ, उसको ऐसे लिख सकते हैं -2t/3 + 3/3, ठीक है? इसको ऐसे लिख सकते हैं। बताओ लगता है कि नहीं तुमको ये जो है इसको लोग ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? टेल मी, यस और नो? बट वो सही नहीं है ना, बॉडमास, राइट? दैट इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, राइट? इट विल बी 2t/3 + 1, और ये तो जैसे वैसे ही -t, ठीक है? तो ये स्टेप सबको समझ में आया? मैंने बस अलग अलग लिख दिया है। ये स्टेप सबको समझ में आया? नहीं आया रागनी? नहीं आया कि वो स्टेप नहीं लिख सकते, ये बोल रही हो? जस्ट थिंक ना, क्या किया हमने? बिकॉज वी कैन ट्रांसपोज देयर, है ना? ट्रांसपोज कर सकते हैं अब ना, जब सारे वेरिएबल अलग हैं और सारे कांस्टेंट अलग हैं, देन वी कैन ट्रांसपोज, है ना? सी, यू शुड आस्क कि व्हाई वी आर डूइंग दिस ना। अब सोचो, यहाँ पे पहले तुम एलसीएम करोगे, फिर ट्रांसपोज करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट शायद थोड़ा सा कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो जाए, है ना? राइट? कैसे? तो यहाँ पे देखो, एलसीएम लेना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर ट्रांसपोज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? राइट? है कि नहीं? कितने सारे स्टेप्स हो जाएंगे। यस? अभी क्या किया? सिंप्लीफाई किया, अलग अलग सिंप्लीफाई कर दिया, अलग अलग खोल दिया, ठीक है? राइट? ये फर्स्ट स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, सबको समझ में आया कि नहीं आया? फर्स्ट स्टेप सबको समझ में आया कि नहीं आया? हाँ लिख सकते हैं श्राव्य, ठीक है? चलो अब देखो, अब ये क्या है? 3t/4 माइनस, नाउ 2/4 इज 1/2, है ना? 2/4 इज 1/2। नाउ माइनस प्लस, टेल मी, माइनस प्लस माइनस, -2t/3, सेम, माइनस प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3 -t। अब बताओ, अब सारा वेरिएबल और सारा कांस्टेंट
अलग अलग है. Can you do transpose now? Tell me, yes or no? Yes, right? Now you can do transpose, है ना? Right? Can you solve this now? Tell me, can you solve this now? Will you try solving? Okay, try solving. Try solving. After this problem, we will have a break. Okay, try solving this. सेकेंड स्टेप में क्या किया हमने? ब्रैकेट है ना, आप देखो मैं बता रहा हूँ. एक चीज बताओ पहले, जब भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आए ना, उसको तोड़ दो, कॉन्सेप्ट को तोड़ दो. माइनस 2x प्लस 5 क्या होता है बताओ? माइनस, ये तो प्लस है एंड ब्रैकेट इज मल्टीप्लाई, सो माइनस इंटू प्लस माइनस 2x एंड माइनस इंटू प्लस माइनस 5. सो ये होगा ना. गॉट इट? युक्ति चेक करते हैं क्या होगा, मुझे नहीं पता अभी. ठीक है, कैलकुलेट करो पूरे स्टेप बाय स्टेप. ओके, सो लेट्स सी, let's calculate. So first is, after this, transpose all the variables to left hand side, all the constant to right hand side. ठीक है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, कोई ध्यान दो. So 3t/4 will be left as it is. ठीक है, 3t/4 will be left as it is. Minus 2t/3 will be left as it is, जो कि ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में है. राइट हैंड साइड में माइनस टी था, सो माइनस टी अगर इस साइड आता है तो क्या बन जाएगा? प्लस टी, प्लस टी. राइट, है ना? ये सबको समझ में आया? ये सारे वेरिएबल्स एक साथ. ये क्वेश्चन नंबर 5 ही है, युक्ति क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा हूँ. राइट, ये सबको समझ में आया? यस और नो? टेल मी, यस और नो? सारे के सारे वेरिएबल आइटम एक साइड. नाउ कांस्टेंट आइटम्स 2/3 यहाँ पे है ऑलरेडी ना. ये माइनस हाफ इस साइड चला गया, माइनस हाफ विल गो दिस साइड, will become plus half. Again this minus 1 also will go this side, plus 1. Right, we just transpose all the variables to left hand side, all the constant to right hand side, as simple as that. ठीक है रागिनी, समझ में आया? ऋषिका, पूर्वी, अमीशा, ठीक है. कैन यू सॉल्व नाउ? कैन यू सॉल्व नाउ? अब तो कर लोगे ना, है कि नहीं? तो एलसीएम लिया हमने, देखो एलसीएम लिया हमने. सो 4 3 1 कैल्शियम 12, 4 से 12 3 टाइम्स में जाएगा, 3 इंटू 3t 90. राइट, माइनस 3 से 12 4 टाइम्स जाएगा, 4 इंटू 2t 80 प्लस 1 से 12 टाइम्स जाएगा, 12 इंटू t 12t, है ना, इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम 6, 3 से 6 2 टाइम्स जाएगा, 2 इंटू 2 4 प्लस 2 से 6 3 टाइम्स जाएगा, सो 3 इंटू 1 3 प्लस 1/1 है, 1 से 6 टाइम्स जाएगा, सो इट इज 6. राइट, सबको स्टेप समझ में आया? बताओ एक एक स्टेप. नाउ 90 प्लस 12t 21t, 21t minus 8t minus 8t by 12 is equal to 4 plus 6 10 plus 3 13 by 6. अभी सॉल्व कितना जाएगा? 21 minus 8 ये कितना? 13t by 12 is equal to 13 by 6. क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई.
So T will be equal to 13 by 6 into 12 by 13. Right here is equal to 2. T is equal to 2. Brinda, calculation check karo. Everyone should check the calculation. Everyone should check the calculation. I'll just write the steps. So first step, just change the color. First step, second step, third step, fourth step, fifth step, sixth step, seventh steps. Right? So normally अब तक जो क्वेश्चंस थे वो 2-3 स्टेप में बन जाते थे, बट ये देखो कितने स्टेप्स गए, इट्स एक्चुअली 8 स्टेप्स, है ना, 8 स्टेप्स। ये तो सेकंड स्टेप था, है ना, इसीलिए तो टोटल 7-8 स्टेप्स चले गए। बट कॉन्सेप्ट कोई नया यूज हुआ क्या? टेल मी, एनी न्यू कॉन्सेप्ट इज यूज्ड? नो, राइट? दैट इज द डिफरेंस, है ना। चलो, ओके, ब्रेक, राइट? यस, 2, आंसर 2। सो वी हैव अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स। बहुत मेहनत कर लिया तुम लोग, वेरी गुड, so proud of you guys. So we will come back at 3:15 p.m. ठीक है, 3:15 p.m. 10 minutes break. Thanks, Purvi. So 2 by 4, 2 by 4, can it be written as 1 by 2? Yes or no? Yes, right? Then C, right? We have 2t by 3 plus 1 ब्रैकेट के अंदर, है ना। So ब्रैकेट खोलेंगे, so माइनस प्लस माइनस। 12t कहाँ है? C, ये t by 12 है, सॉरी t by 1 है, so 12 LCM है। So just think this ना, 12 by 12 t by 12 कितना आएगा? t ना, 1 will divide 12 times and 12 into t will be 12t, है ना, step by step, right? और ये माइनस प्लस माइनस, ठीक है ना। फिफ्थ क्या हो गया? 12t प्लस 9t कितना हो गया? 21t, 21t माइनस 8t, माइनस 8t बाई 12 ऐड किया ना। फिफ्थ स्टेप तो सिर्फ ऐड और सब्सट्रैक्ट है। गॉट इट वृंदा? ठीक है, फिफ्थ स्टेप तो सिर्फ ऐड और सब्सट्रैक्ट है, ठीक है। राइट, ठीक है। सो आई गेस सबको ये समझ में आया होगा, है ना। 12t माइनस 8t है ना वृंदा, देखो माइनस 8t है। ऐड किसको करते हैं? वेट, आई जस्ट डिलीट इट, इसलिए बोलता हूँ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में दिक्कत होता है। 12 माइनस 8 प्लस 9 क्या करेंगे? इसको और इसको ऐड करेंगे और ये सब्सट्रैक्ट करेंगे। सो इट विल बी 21 माइनस 8 विच इज 3। समझ में आया? सॉरी 13, राइट? समझ में आया? यस, गॉट इट? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ट्राई सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 6। अभी मैंने जो जो कॉन्सेप्ट सिखाए उसको यूज करके आराम से प्यार से स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन नंबर 6 करो। ओके दक्ष, चार्ज कर लो, चार्ज में डाल दो।
स्टेप बाय स्टेप, आराम से, एक एक स्टेप, कोई भी स्टेप मिस मत करो, ठीक है? यू विल गेट द आंसर। ठीक है, मधुर, तो इसका कैंसर सेम है, तन्मय का आंसर अलग है। एक बार अपना अपना आंसर क्रॉस चेक करो, क्रॉस चेक करो सब कोई, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप, मैं पहला स्टेप लिख रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप, m माइनस ब्रैकेट, ब्रैकेट ये ध्यान दो, m माइनस सॉरी m by 2 minus 1 by 2 is equal to 1 minus bracket m by 3 minus 2 by 3। तो बहुत लोगों ने यहाँ पे गलती की होगी, बहुत लोगों ने यहाँ पे गलती की होगी, ठीक है? दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, ब्रैकेट खोलने वाला स्टेप बता रहा हूँ रागिनी, वेट, m माइनस माइनस प्लस माइनस m by 2 माइनस माइनस प्लस 1 by 2। ये ध्यान दो, यहाँ पे लोग गलती किए होंगे, 1 माइनस प्लस माइनस m by 3 माइनस माइनस प्लस 2 by 3। यहाँ तक किसने किसने गलती किया बताओ? यहाँ पे किस इस सेकेंड स्टेप में किस लोगों ने गलती किया? माइनस हाफ लिखा है प्लस हाफ की जगह, करेक्ट, वेरी गुड, राइट, सेकेंड स्टेप सबका करेक्ट है। थर्ड स्टेप ट्रांसपोज, थर्ड स्टेप ट्रांसपोज देखो, राइट, ठीक है? थर्ड स्टेप ट्रांसपोज, सो ये m जैसे वैसे रहने दो, माइनस m by 2 जैसे वैसे रहने दो। now this is minus m by 3, इस साइड शिफ्ट होके क्या हो जाएगा? प्लस m by 3 is equal to 1 as it is plus 2 by 3 as it is plus 1 by 2 इधर शिफ्ट होके minus 1 by 2। now this is your third step, check your third step, check your third step everyone, check your third step, right? किन लोगों का थर्ड स्टेप में गलती हुआ है? हाथ उठा ले। थर्ड स्टेप में कौन कौन लोगों ने गलती किया ट्रांसपोज करने में? गलती ओके, ठीक है? नाउ फोर्थ स्टेप एलसीएम, फोर्थ स्टेप एलसीएम, सो m by 1 2 3 1 2 3 एलसीएम 6 6, so 1 will divide 6 times, so it will be 6m minus 2 will divide 6 by 3 times, so 3m, and 3 will divide 6 by 2 times, so 2m,
इज इक्वल टू यहाँ भी LCM 6 1 by 1, 1 will divide 6 times, plus 3 will divide 6 2 times, so 2 into 2 4, 2 will divide 6 3 times, 3 into minus 1 minus sign minus 3, right? This is your fourth step. Fourth step तक check करो, fourth step तक देखो एकदम प्यार से step by step, ठीक है? Very good. Fifth step, 6 plus 2 8m minus 3m by 6 is equal to 6 plus 4 10 minus 3 7 by 6. LCM है ना पूर्वी, fourth step is LCM, 1 2 3 का LCM 6, right? 1 6 को डिवाइड किया 6 टाइम, तो 6 into m 6m, 2 डिवाइड किया 6 को 3 टाइम्स, so 3 into m 3m, 3 डिवाइड किया 6 को 2 टाइम्स, so 2 into m, right? ये RHS फिर LCM 1 2 3 का LCM 6, 1 डिवाइड किया 6 को 3 टाइम्स 6 टाइम्स, so 6 into 1 6, 3 will divide 6 2 times, so 2 into 2 4, 2 will divide 6 3 times, so 3 into 1 3 minus 3. Got it Purvi? Right? फिर fourth step ये sixth step सब कुछ check करो. Sixth step 8m minus 3m 5m by 6. Yes Devika, very good. सही आंसर है 7 by 6. Cross multiply, 7th step cross multiply. M is equal to 7 by 6 into cross multiply क्या हो गया 6 by 5. 7 by 5 is the answer. तो 7 by 5 जिसका था वो सही है, राइट? नाउ छोटी सी गलती वृंदा, छोटी सी गलती 8m minus 3m नॉट प्लस 3m, तुमने यहाँ पे मिस्टेक किया, फिर यहाँ पे ये माइनस इधर जाके, राइट? ये माइनस m by 2 है ना, ठीक है? सबने देख लिया अपना अपना मिस्टेक? हाँ वही स्टेप चेक कर लो, किस स्टेप में रॉन्ग है उसको मार्क कर लो, देखो कि कौन सा कॉन्सेप्ट गलत किया और वो सीख लो, ठीक है? राइट? बताओ अभी समझ में आ रहा है अच्छे से लिनियर इक्वेशन, कितना सिंपल से अच्छे से लिनियर इक्वेशंस? यस, ठीक है, टाइम लगेगा, सही सीखने में तो टाइम लगेगा ही, बट हाँ वही वही गलत हो गया, ठीक है? चलो ओके, आंसर इज 7 by 5. सब कोई चेक कर लो, करेक्ट कर लो, आंसर 7 by 5. ओके वेरी गुड, तो सबका अब आंसर करेक्ट है. चलो अब ये तो हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8, एवरीवन सी क्वेश्चन नंबर 8 नाउ. कहां गया पेन? यहाँ 8. यस, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आएगा, ये प्रैक्टिस है ना, मैथ्स तो प्रैक्टिस पे ही बेस्ड है कि नहीं? अगर मैं तुमसे बोल दूं कि तुम अच्छे से पूरा गोल रोटी बनाओ एक बार में, पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है, राइट? प्रैक्टिस करना होता है. माय वॉइस इज लो, आई डोंट थिंक इट्स लो, आई एम शाउटिंग. ठीक है, सो ध्यान दो. अब क्वेश्चन नंबर 8 में मेरा एलसीएम का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, है ना? सिंपल है, 8 इज इजी, 8 इज कंपैरेटिवली इजी, राइट? ट्राई करो 8 क्वेश्चन नंबर.
Yukti, my voice is not low. You can just leave and join again. Okay. ठीक है, बहुत लोगों का आंसर आ गया, बहुत लोग ने आंसर दिया है। ओके, सो लोगों से सॉल्व हो रहा है। सो दिस इज कंपैरेटिवली इजी, राइट? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या करना था? Distributive property and transpose and cross multiply. That's it. Only three concepts. Distributive property first, transpose second, cross multiply third. ठीक है? I'm audible. I'm not audible. Am I audible? Guys, am I audible? I am audible, I guess. Yeah, I am audible. Everyone, I'm audible. ठीक है? Right? So देखो, first step, distributive property. So 15 into y, ध्यान दो, 15 into y, 15y, 15y, 15 into minus 4, 15 into minus 4, minus 60, ठीक है? Then minus 2 into y, minus 2y. यहाँ पे तुम लोगों ने मल्टीप्लाई में गलती की होगी, ठीक है? मल्टीप्लाई में, then minus 2 into minus 9, minus minus, tell me, minus into minus, plus 2 into 9, 18. Okay, plus 5 into y, 5y, 5 into 6 plus 13 is equal to 0. ये स्टेप सबका सही है कि नहीं? टेल मी दिस स्टेप. ओके, देखो कि किसका क्या क्या आंसर है, राइट? सो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप, all the, so 15y minus 2y plus 5y, so 15 plus 5, 20y minus 2y, ठीक है? Now 60, 18, 30, 18 plus 30, 48, plus 48 minus 60 is equal to 0. Third step, 20 minus 2, 18y, 48 minus 16 minus 12 is equal to 0. Yes or no? Tell me, yes or no? Then transpose. Fourth step, 18y is equal to 12. Fifth step, cross multiply. Y is equal to 12 by 18, which is 2 by 3. Answer is 2 by 3. Check करो सब कोई. 2 by 3 आंसर है. Check your steps. Check your steps. That's right, check your step. Okay. Copy mistake, don't worry. Focus on concepts. तीन ही कॉन्सेप्ट यूज किए ना, राइट? ये एग्जाम में भी होता है तुविश का कि कॉपी गलत कर लोगे और पूरा गलत हो जाएगा, लड्डू मिलेगा. इवन दो योर कॉन्सेप्ट इज राइट, यू विल गेट लड्डू. ठीक है? सो डोंट डू दैट.
ओके, सो सबको ही नोट कर लो, है ना? सबको समझ में आ रहा होगा? यस और नो? जस्ट रेज योर हैंड। जिसको जिसको समझ में आ गया रेज योर हैंड, राइट? जिसको नहीं समझ में आया एक भी स्टेप पूछ लो, ठीक है? पहला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है ना? राइट, ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है? 9 ट्राई करो सबको ही। क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करेगा, 9, ठीक है? 8 जैसा ही है। एवरीवन ट्राई क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, सबको ट्राई करो, सबको ट्राई करो। जस्ट चेक योर फर्स्ट स्टेप, एवरीवन चेक योर फर्स्ट स्टेप। सबका सही है फर्स्ट स्टेप? हाथ उठा लो, फर्स्ट स्टेप सही है तुम्हारा तो? ओके दक्ष, वी विल सी व्हाट्स द आंसर। फर्स्ट स्टेप सबका सही है, राइट? ओके, वेरी गुड। सेकंड स्टेप, variable one side, constant one side. So first we will solve this. 15z minus 18z will give you minus 3z. Minus 21 plus 22 will give you plus 1 is equal to 32z minus 52 minus 17 will give you minus 69, right? Then transpose, ठीक है? 69 इस साइड और ये इस साइड, so it will be 32z plus 3z is equal to 1 plus 69. Third step. Fourth step, 35z is equal to 70. Fifth step, z is equal to 70 by 35. Cancel, okay? 2 आ गया, right? Check your steps. Check your steps. युक्ति टाइम है, टेंशन मत लो, ठीक है? I told you ना, next Wednesday, next Wednesday, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप चेक करो। 2, यस दक्ष, सही है। युक्ति, वेरी गुड। यू गॉट कंफ्यूज्ड, चेक दिस स्टेप्स, चेक दिस स्टेप्स, ठीक है? राइट? रागिनी, पूर्वी, सही है। एवरीवन स्टेप बाय स्टेप try to reduce your silly mistakes, right? Okay, यहाँ पे इक्वल टू बीच में है ना? तो इसलिए इसे ट्रांसपोज करना पड़ेगा। Now last question, today's last question, question number 10, आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? 2.1 2.2 जशवा मंडे तक, मंडे, ठीक है? मंडे तक 2.1 2.2
कोई दिक्कत नहीं है तुविष्कर, यू कैन डू दैट। तुम सॉल्व करके दिन लिखो या लिख के सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, राइट। एट वाले में सी, I told you, you can either simplify LHS and RHS, then transpose, or transpose, then cross multiply. Simplify, sorry. See, okay, I'll explain after this. ठीक है, ये सबको समझ में आ गया, ठीक है। So you don't have to worry about decimals. Just do the same method. 0.25 into 4 कितना होगा 1, so 1f, 1 into f. 0.25 minus 3, so it will be 0.75, right? Simple. Is equal to 0.05 into 10. 0.05 into 10 is equal to 0.5, sorry, 0.05, right? Okay, नहीं ठीक है, is equal to 0.5, so it is 0.5 f minus 0.05 into minus 9, so 0.45. Now transpose this to this side, this to this side, so f minus 0.5f is equal to 0.75 minus 0.45. yes, I'll teach that method also, don't worry, ठीक है, ये easy हो जाता है। तो कितना हो जाएगा 1 minus half, so 0.5f is equal to, this will be 0.45, 0.30, so f is equal to 0.30 by 0.56, right? So this is your decimal method, this is your decimal method, ठीक है, ये decimal method है। okay, sorry, not 6, 0.3 by 0.5 ना, 6 by 10, so it is 2 by 5, so 3 by 5, 3 by 5, 3 by 5, 3 by 5, sorry, my bad, right? 0.6 or 3 by 5, ठीक है, right everyone? So this is a decimal method, okay। सब्सट्रैक्ट होगा ना, सब्सट्रैक्ट हुआ है ना, है कि नहीं, सब्सट्रैक्शन हुआ है, राइट। सी यहाँ पे माइनस है ना, माइनस है, ये भी प्लस, ये भी प्लस, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ना, राइट, ठीक है। नाउ सेकंड मेथड देखो, फ्रैक्शन वाला, टेल मी सेकंड मेथड, डेसिमल को हटा दो, कन्वर्ट कर दो फ्रैक्शन में, सो 25 by 100 into 4f minus 3 is equal to 5 by 100 into 10f minus 9, ठीक है, right? 3 by 5 is 0.6 ना Brinda. Now see, just solve this, ये कटा 4 times, this will get cancelled 20 times, and it will be 4f minus 3 by 4 is equal to 10f minus 9 by 20, then cross multiply, so 20 into 4f minus 3 is equal to 4 into 10f minus 9, so 80f minus 60 is equal to 40f minus 36, so this will go this side, this will go this side, so 80f minus 40f is equal to 60 minus 36, so 40f is equal to 24, f is equal to 24 by 40, which is 3 by 5,
ठीक है, सो दिस इज योर फ्रैक्शन मेथड, ठीक है, गॉट इट, राइट, दिस इज योर फ्रैक्शन मेथड 3/5. ओके, नाउ सी, आज क्या सबमिट करना था, आज तक 4.3 wait, I'll just rub it, 4.3 4.4 कंपल्सरी, राइट, ये तो करना ही करना था, और 2.1 अगर हो गया है तो ये भी कमिट सबमिट करने था, ठीक है, राइट, बट ये कंपल्सरी, दिस इज कंपल्सरी, you can submit this, your job will be easy, right, है ना, if you can't submit you can submit till Monday, don't worry, but 4.3 4.4 तो सबमिट करना ही था आज, ठीक है, चलो, okay, I guess all of you understood, right, so this was the last class of linear equations. I guess सबको समझ में आया होगा, सबने सीखा होगा कि इक्वेशंस क्या होते हैं, कैसे सॉल्व करना होता है ना, सबने सीखा कि नहीं सीखा, बताओ, सीखा कि नहीं सीखा, सीखा, वेरी गुड, हाँ वो तो प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा, ठीक है, तो विश्का प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा, सो दोज हु वांट मोर प्रैक्टिस ना, राइट, तुम नीचे वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हो, तुमको थोड़ा सा टफ प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो नीचे वाला सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, टफ प्रॉब्लम्स, राइट, ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे, ओके, बाय एवरीवन.